आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर ने बीआरएस के इंतखाबी मंशूर को किया जारी। मंशूर में 400 रुपये गैस सिलेंडर, आसरा पेंशन, रैतु बंधु रकम, खवातीन के लिए कई एक स्कीमात का किया ऐलान। महबूबनगर जिले जो गैर मुल्की सयाहों के राखुब कर रहा है, रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने सोने की स्मगलिंग को बनाया नाकाम। तलाशी के दौरान एक मुसाफिर के कब्जे से 40,41,000 रुपये मालियती सोना किया जब्त। वज़ीर आज़म मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इनकी यौम पैदाइश पर किया खिराज अकीदत। आंजानी के शाइस्ता मिजाज और साइंसी सलाहियत को किया याद। महाराष्ट्र में खौफनाक सड़क हादसे में 12 अफराद हलाक, दीगर 18 अफराद जख्मी। इंडिया की जीत खवातीन के हकूक को यकीनी बनाएगी। तमिलनाडु के वज़ीर आला और DMK के सदर MK स्टालिन का बयान। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदगी जारी, गजा में मरने वालों की तादाद 2,300 से तजाउज। इसराइली हुकूमत को गजा के लोगों को इज्तिमाई सजा देना बंद कर देना चाहिए। चीन के वजीर खारजा का बयान। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर BRS के सदर और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने BRS पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। इंतखाबी मंशूर में आसरा पेंशन, रैतु बंधु रकम में इजाफे के साथ खवातीन के लिए खुसूसी स्कीमों का ऐलान किया गया है। अहले खवातीन को माहाना वजीफा देने का ऐलान किया गया है। उन्होंने गरीब खवातीन को 400 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करने का वादा भी किया है। तेलंगाना भवन में इंतखाबी मंशूर जारी करने के बाद वज़ीर आला केसीआर ने BRS के इंतखाबी मंशूर की तफसीलात से वाकिफ करवाया। కరువులతో అల్లాడుతూ వలసల పాలైపోయి బతుకుదెరువు కోసం అన్నమో రామచంద్ర అని దేశం నలుమూలల లక్షలాది మంది తెలంగాణ బిడ్డలు పొట్ట చేత పట్టుకొని పోయినటువంటి పరిస్థితులు చాలా హృదయ విదారకంగా ఉండేవి. కరెంటు లేదు, ఇరిగేషన్ సౌకర్యం లేదు, కొత్త రాష్ట్రం, కొత్త కొండలో ఈగది వచ్చినటువంటి పరిస్థితి. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మన తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ డాక్టర్ జిఆర్ రెడ్డి గారిని ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు అడ్వైజర్గా ఉన్నటువంటి ఒక ఆర్థిక నిపుణుడు తెలంగాణ నుంచే ఉండే కాబట్టి వారు బీహార్ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తూ ఉంటే వారిని రిక్వెస్ట్ చేసి వారితో పాటు BPR విఠల్ లాంటి అనేక మంది మేధావులను, ఆర్థికవేత్తలను సంప్రదింపులు జరిపి ఒక 2-3 మాసాల మేధోమథనం, చాలా తీక్షణమైనటువంటి చర్చలు జరిపి అసలు ఆదాయ వ్యయాలు ఏముండబోతాయి అంచనాలు లేకుండే. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఈరోజు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ఎప్పుడు రాష్ట్రంగా లేదు. ఇప్పుడున్నటువంటి తెలంగాణ 2 జూన్ 2014 నుంచే ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చింది. కొత్త రాష్ట్రం ఏ రకమైన ట్రెండ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఏ రకమైన పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉంటాయి, దేశ వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంది, అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంది, అన్నీ కూడా రంగరించి మేళవింపు చేసి అవగాహన చేసుకొని ప్రస్థానం ప్రారంభం కావాలి, ఎక్కడికి చేరుకోవాలి, ఏ దశకు ఏ పరిస్థితులు రావాలి అనే అంచనాలు వేసుకొని తెలంగాణ తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. BRS పార్టీ యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటంటే మేము మేనిఫెస్టోల రూపంలో, అది 2014 కావచ్చు లేదా 2018 కావచ్చు, ఎన్నికల ప్రణాళిక రూపంలో చెప్పింది 10%, కానీ ఆచరణ తీసుకొచ్చిన స్కీములు దాదాపు ఒక 90% మేనిఫెస్టోలో లేనటువంటి వాటినే ఎప్పటికప్పుడు పరిపాలనా క్రమంలో
ఎదురవుతున్నటువంటి అనుభవాలను స్వీయ అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ ప్రజల అవసరాలను మేలవింపు చేసుకుంటూ దానికి అనుగుణంగా పథకాలకు రూపకల్పన చేసినాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కళ్యాణ లక్ష్మి మేము ఏ మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించలే, మమ్మల్ని ఎవరు డిమాండ్ చేయలే. రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు ఏ మేనిఫెస్టోలో మేము ప్రకటించలే. అదేవిధంగా రైతు బంధు, రైతు బీమా, ఇట్లాంటి ఎన్నో పథకాలు, చాలా పథకాలు, విదేశీ విద్యా స్కాలర్షిప్స్ మేము ఏ ఎన్నికల ప్రణాళికలు కూడా ప్రకటించలేదు. కానీ మాకు మేముగా పరిపాలన జరిగే క్రమంలో వాటన్నిటినీ క్రోడీకరించుకొని మేళవించుకొని ఎప్పటికప్పుడు క్యాబినెట్ సమావేశపరుస్తూ పాలసీ డెసిషన్స్ అని కూడా తీసుకొని 90% గత 10 సంవత్సరాలలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన పథకాలు ఎన్నికల ప్రణాళికలో ప్రకటించినటువంటివే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వర్గాల సోదరులను నేను సాల్యూట్ చేస్తా ఉన్నా, అభినందిస్తా ఉన్నా. ఈ మధ్యనే మొన్న 2 పండుగలు ఒకటే రోజు కలిసి రావడం జరిగింది. వినాయక కానీ ఇటు మిలాదున్ నబీ కానీ గొప్పగా జరిపి ప్రపంచానికి ఒక ఆదర్శాన్ని నెలకొల్పిన తెలంగాణ సమాజం. అంటే అంత సౌమనస్యంతో, అంత సోదరభావంతో ఈ తెలంగాణ సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే క్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సహకరించినటువంటి ముస్లిం, క్రైస్తవ, హిందూ గౌరవించుకునే పద్ధతి, మంచి విలువలు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నెలకొల్పింది. అవి అదేవిధంగా కంటిన్యూ కావాలి, అదేవిధంగా కొనసాగాలి. భవిష్యత్తులో కూడా మైనార్టీ సోదరుల యొక్క బడ్జెట్ను పెంచుతాం, వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాలను పెంచుతాం. రెసిడెన్షియల్ కళాశాలలు, జూనియర్ కళాశాలలు 204 పైచీలకు ఏవైతే పెట్టినామో భవిష్యత్తులో నేను హామీ ఇస్తా ఉన్నా వాటన్నిటినీ కూడా రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కళాశాలలుగా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి మేము ఈ పార్టీ నిర్ణయించుకున్నాం. ఈ మేనిఫెస్టోలో దాన్ని నేను హామీ కూడా ఇస్తా ఉన్నాను, మనం చేస్తా ఉన్నా. దళిత సోదరుల కోసం పెట్టినటువంటి దళిత బంధు భారతదేశ స్వతంత్ర భారత చరిత్రలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ, ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఏనాడు కూడా దాన్ని ఆలోచన చేయలేదు. నాయి బ్రాహ్మణ సోదరులు కావచ్చు, వాళ్ళందరికీ కూడా 1 లక్ష రూపాయలు వడ్డర సోదరులు కావచ్చు. పార్టీ పాలసీ ప్రభుత్వం అయితే పార్టీ మీకు డౌట్ ఉందా? గవర్నమెంట్ వస్తేనే కదా మీరు చేసేది. ఎందుకు ఇస్తాము అంటే విధివశాత్తు అనుకోకుండా ఈరోజు చాలా బాగున్న వ్యక్తి ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఒక కాలు చేయిపోవచ్చు, ఆయన విధివంచితుడు అయిపోతాడు. అట్లాగే అనేక రకాల ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఆరోగ్యం దెబ్బతిని కూడా కొంతమంది చాలా చక్కగా స్టౌట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఒక 10 రోజులలో 15 రోజులలో వేరే రకమైన పరిస్థితి గురి కావచ్చు. 60 నుంచి 70% ప్రజలు డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా బ్రతుకుతూ ఉన్నారు. పండేది ఫీల్డ్లో రైస్ అయినా దాన్ని మోసే హమాలీలు కావచ్చు, మిల్లింగ్ చేసే మిల్లర్స్ కావచ్చు, రైస్ మిల్లర్స్ కావచ్చు, మధ్యలో మార్కెట్ ఉండేవాళ్ళు కావచ్చు, బియ్యం అయిన తర్వాత ట్రేడింగ్ చేసుకునే వాళ్ళు కావచ్చు. ఎన్నో లక్షలాది మందికి ఉపాధి కల్పించే రంగం వ్యవసాయ రంగం. ప్రాజెక్టులు చాలా చక్కగా కట్టుకొని బ్రహ్మాండంగా 3 కోట్ల టన్నుల వరి ధాన్యం పండించే స్థాయికి ఇది పోయింది. కాబట్టి దీన్ని నిరంతరంగా కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పి తెలంగాణ ఒక అన్నపూర్ణగా దేశానికి అన్నదాతగా తయారైంది. కాబట్టి ఈ స్కీమ్ను ఎట్టి పరిస్థితులలో వ్యవసాయ స్థిరీకరణ తెలంగాణలో మేము చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగాం. ఆ స్థిరీకరణ యథావిధిగా కొనసాగుతూ మోడర్న్ అగ్రికల్చర్ టూల్స్ అవన్నీ కూడా ఇంకా సమకూర్చుకుంటూ ఇంకా ఉత్పాదకతను పెంచుకుంటూ అద్భుతమైన వ్యవసాయ రాష్ట్రంగా తెలంగాణ వెలుగొందాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికోసం ఏదైతే రైతు బంధు మేము ఇచ్చినామో దాన్ని కూడా స్కీమాటిక్గా ఒకటేసారి పెంచడం కాకుండా రైతు బంధు పథకం ఈరోజు 10,000 రూపాయలు ఉంది 2 పంటలకు కలిపి. దాన్ని కొంచెం పెంచాలని నిర్ణయించినాం. దాన్ని 16,000 రూపాయలు తీసుకొని పోతా ఉన్నాం. ఇది కూడా ఎట్లా అంటే మొదటి సంవత్సరంలో ఇమీడియట్గా 12,000 రూపాయలు పెరుగుతుంది. అది ప్రతి సంవత్సరం కొంత పెరుగుతూ 5th ఇయర్కి వెళ్ళేటప్పటికీ 16,000 రూపాయలు చేరుకుంటుంది.
वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूबनगर जिले जो कभी पीने के पानी के मसाइल से दो चार था, अब गैर मुल्की सयाहों को अपनी तरफ राग़िब कर रहा है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव के ताउन से महबूबनगर जिले की शानदार तरक्की हो पाई है और इसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है। फ्रांस, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे 5 ममालिक के 8 गैर मुल्की बाइक सवारों का सफर फ्रांसीसी मोटरसाइकिलिस्ट एलेसन ग्रोन की क़ियादत में फ्री डब्ल्यू नामी प्लेटफॉर्म के जरिए महबूबनगर से शुरू हुआ। खवातीन को माशी मौके फराहम करने की मोटरसाइकिल की चलाने की गैर मामूली तजुर्बात पैदा करने और दुनिया भर से सकाफती रवायत को सीखने के लिए इन कोशिशों की वजीर मौसूफ ने सताइश की है। पतलून की जेब में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद के एयरपोर्ट के कस्टम अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया है। यह मुसाफिर कुवैत से हैदराबाद पहुंचा था। इसके सामान की तलाशी के दौरान इसके पास से 40,41,000 रुपये मालियत का 656 ग्राम सोना जब्त किया गया। वाज़ेह के हालिया दिनों के दौरान इस एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग के कई एक वाकयात को कस्टम के अहदेदारों की चौकसी की वजह से नाकाम बनाते हुए जर धात को बड़े पैमाने पर जब्त किया गया। दिल का दौरा पड़ने से एक 12 साला लड़की की मौत वाक़ई हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 12 साला मैथिली जिले के मोपल्ली मंडल में सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल की तलबा थी। दशहरा की छुट्टी वाले दिन वो घर आई हुई थी। साई लक्ष्मी टीचर की 2 बेटियां हैं। पहली बेटी इंटर साले अव्वल में है और मैथिली सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में 7वीं जमात में पढ़ रही थी। इसने अपनी वालिदा को बताया कि इसे रात के वक्त अचानक सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद इलाज के लिए इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने इसका मुआयना करने के बाद इसको मुर्दा करार दे दिया और कहा कि दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत वाक़ई हो गई। शहर हैदराबाद के PVNR वे पर नौजवान लड़के और लड़की के जानिब से चलती कार की छत पर गैर अखलाकी हरकत वाली वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इस वीडियो को सड़क से गुजरने वाले एक कार में बैठे शख्स ने अपने सेल फोन में कैद कर लिया। इस वीडियो में इन दोनों की गैर अखलाकी हरकत को देखते हुए इस 24 सेकंड की वीडियो में देखा गया है कि ये जोड़ा कार की छत पर बैठा है और दोनों किसी की भी परवाह किए बगैर ऐसी शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। मोदी ने इनकी शाइस्ता मिजाज से साइंसी सलाहियत को याद किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मिसाइल मैन के तौर पर मारूफ मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मुल्क के तई इनकी बेमिसाल खिदमात के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। मिस्टर मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इनकी यौम पैदाइश के मौके पर तहे दिल से खिराज अकीदत पेश करता हूं, जिन्हें इनके आजिजाना रवैये और गैर मामूली साइंसी सलाहियतों की वजह से लोग पसंद करते हैं। कौम की तामीर में इनकी बेमिसाल खिदमात को हमेशा अकीदत के साथ याद रखा जाएगा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजनगर जिले के विजपुर तालुका में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर शनिचर देर रात मुसाफिर बस के घड़े ट्रक से जा टकराने के नतीजे में सैलानी बाबा के 12 अकीदतमंदों की मौत वाक़ई हो गई कि 18 दिगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक ये वाक़या देर रात 1 बजे उस वक्त पेश आया जब सैलानी बाबा के अकीदतमंद जा रहे थे कि बस वेजापुर के करीब समृद्धि एक्सप्रेस वे पर जपड़गांव टोल प्लाजा के करीब एक ट्रक की टक्कर आ गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसे में 12 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 6 खवातीन और एक 9 मौलूद बच्चा भी शामिल है, जबकि 18 अफराद जख्मी हैं। देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जख्मियों को छत्रपति संभाजी नगर और वेजापुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल GMCH में दाखिल करवाया गया।
दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना और मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकर ने इतवार की सुबह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मेट्रो और दीगर जराये से स्टेडियम पहुंचने वाले लोगों की बड़ी तादाद में हाफ मैराथन को बड़े जोश व खरोश के साथ देखा गया। मैराथन में हर उम्र के लोगों को हिस्सा लेते हुए देखा गया। आज 3 तरह के मैराथन मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें हाफ मैराथन एमेच्योर 10 किलोमीटर रूट पर हाफ मैराथन एलिट शामिल है। पहली हाफ मैराथन एमेच्योर जिले सुबह तकरीबन 5 बजे से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर भीमेशम पतमा मार्ग लोधी रोड, श्री औरबिंदर मार्ग लोधी रोड, मथुरा रोड और सुब्रमण्यम भारती मार्ग, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, सी हेंगान गोन को और रेल भवन रफा मार्ग से होता हुआ स्टेडियम पर अख्तिताम पजीर हुआ। दूसरी मैराथन तकरीबन सुबह 5 बजे संसद मार्ग पर जीवन दीप बिल्डिंग से शुरू होकर JLN स्टेडियम कॉम्प्लेक्स पर अख्तिताम पजीर हुआ, जबकि तीसरी हाफ मैराथन एलिट सुबह 7 बजे GLN स्टेडियम कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर इंडिया गेट की सी हेगसान में होते हुए स्टेडियम के बाहर अख्तिताम हुआ। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अपोजिशन जमातों के दरमियान इत्तेहाद की अपील करते हुए तमिलनाडु के वज़ीर आला और DMK के सदर M.K. स्टालिन ने बीजेपी को फैसला कुन शिकस्त देना और हिंदुस्तान में हर जमहूरी कुव्वत के लिए एक तारीखी जरूरत है और इंडिया अलाउंस की जीत न सिर्फ खवातीन बल्कि तमाम शहरियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। DMK की खवातीन विंग के ज़ेर एहतमाम खवातीन के हकूक कॉन्फ्रेंस में अपने खिताब में स्टालिन ने पार्लियामेंट में मंजूरशुदा खवातीन रिजर्वेशन बिल को फौरी नाफिज करने का मुतालबा किया। उन्होंने मौजूदा तमाम कायदीन से दरख्वास्त की है कि वो 2019 से दिखाए गए तमिलनाडु मॉडल की पैरवी करते हुए मुत्तहद होकर काम करें, ताकि बीजेपी को खवातीन के हकूक और मुल्क के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इख्तिदार से हटाया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी समेत इंडिया अलाउंस की कई सरकर्दा खवातीन रहनुमा मौजूद थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कानून में एक अहम खामी OBC और अक़लियती खवातीन के लिए रिजर्वेशन की कमी है। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें अंदरूनी रिजर्वेशन दिया जाए तो ही पसमानदा और माशी तौर पर महरूम लोगों की आवाज असेंबलियों और पार्लियामेंट में सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी को कुछ और ही पसंद है। हमें इसे बीजेपी की सियासी चाल के तौर पर नहीं बल्कि मुमकिना तौर पर एक वसी तर साजिश के तौर पर समझना चाहिए। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए आज ऐलान के पार्टी उम्मीदवार को अपनी नेक ख्वाहिशात देते हुए कहा, आप अब अवाम रियासत में सच्चाई और इंसाफ की हुकूमत कायम करेंगे। चौहान ने एक्स पर पोस्ट किया, कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2023 के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस कारकुनों और मध्य प्रदेश के मुअज़्ज़िज़ लोगों से अपील करता हूं कि वो कांग्रेस उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाएं और मध्य प्रदेश में सच्चाई और इंसाफ की हुकूमत कायम करें। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन के हिस्से के तौर पर पहले इंसानी खलाई मशीन के क्रू मॉड्यूल स्केप सिस्टम का टेस्ट करने के लिए अपनी पहली परवाज अंजाम देने की तैयारी में है। इसरो के सरबराह एस सोमनाथ के मुताबिक इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 का इस्तेमाल करके क्रू मॉड्यूल स्केप सिस्टम का बगैर पायलट के टेस्ट फ्लाइट मिशन श्रीहरिकोटा के खलाई बंदरगाह से होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए तैयारी का काम जारी है। क्रू स्केप सिस्टम की कारकर्दगी को जाहिर करने वाली फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अब्रोड मिशन 1TV-D1 की तैयारी SDSC शार रेंज में पूरे परवाजों पर है। खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने पहले ही नई दिल्ली में सहाफियों को बताया था कि गगनयान मिशन से पहले कई आजमाइशी परवाजों में से पहली खला में हिंदुस्तान का पहला इंसान ब्रादर मिशन 21 अक्टूबर को होगा। टेस्ट का मकसद क्रू मॉड्यूल या गाड़ी के एक हिस्से की जांच करना है जहां हिंदुस्तानी खलाबाजों को रखा जाएगा। टेस्ट में मॉड्यूल को बैरूनी खला में लॉन्च करना और इसे जमीन पर वापस लाना और खलीज बंगाल में टच डाउन के बाद इसे बहाल करना शामिल है। इजरायली फौज की तरफ से फिजाई
बमबारी से उस वक्त तक मरने वाले फलस्तीनी शहरियों की तादाद 2329 हो गई है, जबकि 9714 अफराद जख्मी हुए हैं। हुकाम का कहना है कि गजा में इसराइली बमबारी से मरने वालों की तादाद 2300 से ज्यादा हो गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज की तरफ से फिजाई बमबारी से उस वक्त तक मरने वाले फलस्तीनी शहरियों की तादाद 2329 हो गई है, जबकि 9714 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। हमास की तरफ से इसराइल में किए गए हमलों में मरने वाले इसराइलियों की तादाद 1300 से ज्यादा बताई जा रही है। इसराइली फौज ने एक ऐलान किया है कि वो गजा पर ज़िमनी, फिजाई और समंदरी हमले की मंसूबाबंदी कर रही है, मगर अभी हमें ये मालूम है कि ये सब कब किया जाएगा। शनिचर की रात इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इन हमलों की तैयारी करने वाले फौजियों से मुलाकात की है। एक वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं और वो फौजियों से कह रहे हैं कि क्या आप अगले मिशन के लिए तैयार हैं, अभी आगे बहुत कुछ होना जा रहा है। रात भर इसराइली फौज की तरफ से गजा पर शदीद बमबारी का सिलसिला जारी रहा। इसराइल की तरफ से लाखों फलस्तीनियों को शुमाली गजा से निकालने का हुक्म दिया गया है। इसराइल की तरफ से गजा में ज़िमनी ऑपरेशन शुरू करने के इम्कानात के बाद हजारों फलस्तीनी गजा छोड़कर जा रहे हैं। इस इनखला से मुतालिक इसराइली फौज के एक तर्जुमान ने कहा कि गजा छोड़ने वालों को 3 घंटों के एक महफूज रास्ता दिया जाएगा। ताहम इन शहरियों को हर सूरत में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सरहद पार करना। चीन के वज़ीर ख़ारजा के लोग चाहिए। अरबिया वज़ारत हफ्ते के रोज अपने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान को कॉल के दौरान तबसरा किया। कहा कि तमाम फ़रीक़ीन को कशीदगी को बढ़ाने के लिए कोई इक़दाम नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ जाना चाहिए। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज की तरफ से फिजाई बमबारी से इस वक्त तक मरने वाले फ़लस्तीनी शहरियों की तादाद 2329 हो गई है, जबकि 9714 अफराद जख्मी हुए हैं। के एक सीनियर रुकन और दो दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ये इतला नीम खुद मुख्तार कुर्दिस्तान इलाके के अंसदाद दहशतगर्दी सर्विस में एक बयान में दी गई है। बयान के मुताबिक वो मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे इस वक्त मारे गए जब तुर्क ड्रोन ने सूबे दोहाक के खज़े अल के करीब सड़क पर इनकी गाड़ी पर हमला किया। तुर्क अफवाज अक्सर शुमाली इराक में PKK के खिलाफ ज़िमनी कार्रवाइयां, फिजाई हमले और तोप खाने से बमबारी करती हैं, खासतौर पर कंदेल की पहाड़ियों में जो इस ग्रुप का मरकजी अड्डा है। काबिल जिक्र है कि PKK को तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, जो 3 दहाइयों से जायद अरसे से तुर्की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रही है। इख्तिताम से ख़बर एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR ने BRS की इंतखाबी मंशूर को किया जारी। मंशूर में 400 रुपये गैस सिलेंडर, असरा पेंशन, रैतु बंधु रकम, खवातीन के लिए कई स्कीमों का किया ऐलान। महबूबनगर जिले जो गैर मुल्की सयाहों को राग़िब कर रहा है, रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने सोने की स्मगलिंग को बनाया नाकाम। तलाशी के दौरान एक मुसाफिर के कब्जे से 40,41,000 रुपये मालियती सोना के असद। वज़ीर आज़म मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इनकी यौम पैदाइश पर पेश किया खिराज अकीदत। आन जहानी की शाइस्ता मिजाज और साइंसी सलाहियत को किया याद। महाराष्ट्र में खौफनाक सड़क हादसे में 12 अफराद हलाक, दीगर 18 जख्मी। इंडिया की जीत खवातीन के हकूक को यकीनी बनाएगी, तमिलनाडु के वज़ीर आला और DMK के सदर MK स्टालिन का बयान।
इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदगी जारी, गजा में मरने वालों की तादाद 2300 से मुतजावज। इसराइली हुकूमत को गजा के लोगों को इज्तिमाई सजा देना बंद कर देना चाहिए, चीन के वजीर खारजा का बयान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी न्यूज के साथ।